Namaste. In trigonometric function, the last two simple parts is left to discuss here. One part is called as Heron's formula and last one is called as Napier's analogy. Now what is Heron's formula? We have used this formula to get the area of triangle in 7th, 8th standard. How to prove this formula? This is our target. Now if I consider same triangle ABC and that ABC, small ABC is having this twice of S value in addition, then we have to prove the regular Heron's formula as area of triangle ABC is equal to square root of S into S minus A into S minus B into S minus C. So this structure for this area we want to prove by using the previous parts which we have already proved. Now to prove this we are using that is triangle ABC, and one construction we are making here, we are drawing a perpendicular AD on the base BC. When we draw this perpendicular, this angle will be 90, and at vertex C we are having this angle as a capital C. Another thing, this BC is having opposite sides, that's why its length will be small a, as well as this AC is opposite of the angle B, so the AC is small c, and the side which is opposite of the angle C, that is EB, is denoted by or is having the length as a small c. If I want to get the value of sin C in triangle ADC, what will be sin C in the smaller triangle, that is triangle ADC? In sin we are requiring opposite side upon hypotenuse. So to get the value of sin C, we are requiring opposite side, that is AD divided by AC. So AD upon AC, but AC is B. So if I want to transfer this B to the left hand side, this will be in the multiplication of sin of C. So this will give us the value of AD. So AD is equal to B into sin of C. So we have got sin of this angle C in this small triangle ADC. What is AD? AD already we have drawing perpendicular on BC. So this is the height of this triangle. So height is known to us. Base is having the value as A. Now we want to get the value of area of triangle ABC by our regular formula, that is half into base into height. So base, that is BC, whose length is denoted by small a. So we are using half as it is. A means base, and what is height? Height is AD, and it is having value in terms of B as sin of C. So AD is equal to B into sin of C. Now keeping first, that is 1 by 2 as it is, A as it is, B as it is, we are replacing this sin C, and sin C is replaced by that trigonometric formula sin 2 theta is equal to 2 into sin theta into cos theta. डबल एंगल का जो फॉर्मूला है साइन का, उस साइन के डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करके उसको आप राइट साइड में वही चेंजेस करते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मेंटेन होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2. तो ये अगर थीटा है तो राइट के साइन और कॉस का एंगल आता है थीटा बाय 2 मल्टीप्लीकेशन में 2 और साइन और कॉस का प्रोडक्ट. तो इस तरह से ये साइन थीटा की वैल्यू है. आप अगर साइन सी आपके पास अवेलेबल है तो उसके हिसाब से चेंजेस कहाँ मिलेंगे? ये फॉर्मूले का 2 एज इट इज, साइन आता है पहला रेशियो और उसको एंगल, ये जो साइन को एंगल है उसका हाफ देना पड़ता है, तो यहाँ सी है तो उसका सी बाय 2 आता है, और मल्टीप्लीकेशन में दूसरा रेशियो आता है कॉस, और उसको एंगल भी जो सी को है उसका हाफ एंगल देना पड़ता है. जैसे यहाँ थीटा था तो थीटा बाय 2 दोनों को आपने यूज किया है. अब आपका टारगेट ये है कि ये जो साइन सी बाय 2 एंड कॉस सी बाय 2 ये ऑलरेडी आपने तैयार किए हैं, दैट इज हाफ एंगल फॉर्मूला इनके मालूम है. तो साइन सी बाय 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? साइन सी बाय 2 का है, जब सी एंगल अटैच करते हैं साइन को तो यहाँ सी नहीं आता है,
राइट साइड में, इसके वैल्यू में सी, स्मॉल सी कभी भी नहीं आता है। तो स्मॉल सी नहीं आता है तो क्या आता है, स्मॉल ए आता है, स्मॉल बी आता है। तो आपको ये और बी कहाँ यूज करना है, रूट के अंदर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और वो जो ए और बी आपने यूज किया है वो उनका ही प्रोडक्ट आपको नीचे लिखना है। तो ये आपके साइन सी बाय टू की वैल्यू है हाफ एंगल फॉर्मूले से। उसी तरह से आप कॉस सी बाय टू की वैल्यू लिखना चाहते हैं, जब कॉस को सी अपने एंगल यूज किया है तो ये सी ही सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है उस यस से, और सी को छोड़ के बाकी के दो नीचे यूज करना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन। तो ये कॉस सी बाय टू की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस सी अपॉन ए बी। अब यह सिंप्लीफिकेशन का वर्क क्या होगा, यह भी डिनोमिनेटर में ए बी है, यह भी डिनोमिनेटर में ए बी है। इनको अगर रूट ऑफ सेपरेट देते हैं तो न्यूमरेटर का रूट होगा, रूट में ए बी होगा, इसका भी रूट न्यूमरेटर को दे दो, यह भी रूट में ए बी होगा। तो रूट ए बी इंटू रूट ए बी क्या होगा, रूट ए बी इंटू रूट ए बी। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में जब आते हैं तो इसका आंसर होता है सिर्फ ए बी, बराबर है। जैसे रूट टू इंटू रूट टू, तो टू ही आंसर उसका मेंटेन होता है। उसी तरह से रूट में ए बी और रूट में ए बी है मल्टीप्लीकेशन में, तो उसका दोनों का आंसर होता है जस्ट एज ए बी। और ये ए बी जो आपको नीचे मिला है इस ऊपर के ए बी के साथ कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो टू है इस नीचे के टू के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको ये भी कैंसिल होने के बाद रूट के अंदर क्या मिला है ऊपर न्यूमरेटर में, तो मैं अगर उसको, अब ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, पहले को भी रूट है, मल्टीप्लीकेशन में दूसरे को भी रूट है। तो ये कर्ड की जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी इस तरह से है कि रूट में ए इंटू रूट में बी है, तो आप ये दोनों का रूट कॉमन लेके दोनों को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो आपको ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो ये सभी को कॉमन रूट यूज करो और इनका सभी का प्रोडक्ट ले लो। तो प्रोडक्ट में आपको अगर कम्यूटेटिव करना है, किसी को पहले लेना है तो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ यस को पहले यूज किया है जो आपको रिक्वायर्ड साइड की तरफ जाने के लिए लिखा है। उसके बाद में आपको यस माइनस ये है, यस माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में, और इस ब्रैकेट में आता है यस माइनस बी। तो आपका ये भी कैंसिल होने के बाद जो मिलता है वही आपके रिक्वायर्ड साइड की वैल्यू है। तो रूट में आपको चाहिए था रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो आपने फॉर्मूला ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड में यूज किया है वो इस तरह से प्रूव होता है 12th स्टैंडर्ड में। तो 12th स्टैंडर्ड में आपको ये हाफ एंगल का फॉर्मूला लगता है, बाकी तो आपको बेस और हाइट जो आप यूज करते हैं एरिया के लिए वो तो रेगुलर है। तो इस तरह से ये यस वाला फॉर्मूला आगे एग्जांपल में आपको यूज करना है। अब इसके बाद में जो आपका लास्ट वर्क है वो है नेपियर्स एनालॉजी। तो नेपियर्स एनालॉजी क्या है, अब तक आपने साइन कॉस के बारे में रिजल्ट तैयार किया, अब ये रिजल्ट सिर्फ आता है टैन के बारे में। तो टैन के बारे में आप रिजल्ट ये प्रूव करना चाहते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट टैन, अब ये जो कैपिटल एबीसी आता है ये एंगल के लिए है, और स्मॉल एबी जो आता है, एबीसी जो आएगा वो लेंथ ऑफ साइड्स के लिए ट्रायंगल के। तो टैन को आपने एंगल क्या दिया है, बी माइनस सी अपॉन टू, बी माइनस सी अपॉन टू, दो एंगल की सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड बाय टू, ये टैन को आपने सप्लाई किया है। तो राइट में क्या देता है, क्या मेंटेन करता है वो, स्मॉल बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इनटू कॉट। अब कॉट को कौन सा एंगल है जो आपने यूज नहीं किया है लेफ्ट में, एंगल कौन सा यूज नहीं किया आपने, ए, तो ए का हाफ दैट इज ए बाय टू कॉट को रहेगा। तो यहाँ टैन है तो इधर कॉट आता है कंपलसरी में, और इसी स्ट्रक्चर को बी माइनस सी जो एंगल में है वही बी माइनस सी स्मॉल वैल्यू में मेंटेन करते हैं, और नीचे उसका प्लस मेंटेन होता है। और टैन का अपोजिट रेशियो दैट इज को रेशियो रहता है कॉट, ये ऐसे एंगल के साथ अटैच होता है जो आपने यूज नहीं किया है लेफ्ट में। तो लेफ्ट में बी और सी यूज किया है तो राइट में ए बाय टू आता है। तो इसको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए आपको फिर से एक बार जाना है साइन रूल के तरफ, और आपका साइन रूल ये कहता है, साइन रूल अगर आप एक बार रिमाइंड करते हैं तो साइन रूल का स्ट्रक्चर ये है कि दैट इज ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी is equal to C upon sin C, capital C, that and this can be considered as a constant number K। तो इस साइन रूल से
अगर मैं पहले और लास्ट को इक्वेट करता हूं, जैसे a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू, अगर मैं k कहता हूं तो यहाँ से साइन ए को अगर राइट में ट्रांसफर करते हैं तो a की वैल्यू मिल जाती है, a इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ साइन ए। सो a इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ साइन ए। उसी तरह से सेकंड और लास्ट को यूज करते हैं तो b इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ साइन b और c इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ साइन ऑफ कैपिटल C। तो ये एबीसी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है एंगल्स के फॉर्म में एबीसी। तो आप जो रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं उसके इस ब्रैकेट से स्टार्ट करना चाहते प्रूव। तो नेपियर्स एनालॉजी ये कई बार बोर्ड में पूछी गई है प्रूव करने के लिए, तो आपको स्टार्ट करना है उसका प्रूफ इस ब्रैकेट से। तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी से स्टार्ट करेंगे। तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, तो आपको इस साइन रूल से जो b और c मिला है उनको यहाँ यूज करना है। तो b की जगह पे आपने यूज किया है k साइन b, जो आपको मिला है माइनस एज इट इज k साइन ऑफ c। नीचे वही वैल्यूज है b k साइन b और प्लस k साइन ऑफ c। अब ये यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, तो ऊपर का k कॉमन निकालो, नीचे का भी कॉमन निकालो और ऊपर नीचे का कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से वो कैंसिल करके आपने जो बाकी है उसको लिखा है साइन b माइनस साइन c, साइन b प्लस साइन b। अब आपको ये जो स्ट्रक्चर ऊपर मिला है ये साइन c माइनस साइन d वाले फॉर्मूले के जैसा है, जिसको आप कहते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। जो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नंबर 2 है। और नीचे का स्ट्रक्चर कैसा है, साइन है, पहला एंगल है, प्लस है, फिर एक बार साइन है और दूसरा एंगल है, दोनों के एंगल अलग अलग है, साइन साइन है, बीच में प्लस है, तो ये साइन सी प्लस साइन डी वाला स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों के भी स्ट्रक्चर आपको मालूम होनी चाहिए और उसको यूज करना है। तो ये माइनस जब आता है तो पहले कॉस यूज करना पड़ता है और साइन बाद में आता है। तो ये कॉस साइन में आता है जब माइनस है तो, और बीच में प्लस है तो साइन कॉस में आता है, एंगल वही रहेगा। तो आपको माइनस के लिए अगर रिप्लेस करना है साइन बी माइनस साइन सी, तो ये स्टार्ट होता है 2 से, 2 इंटू कॉस बी प्लस सी, ये दो जो एंगल है इनकी एडिशन डिवाइडेड बाय 2 यूज करना पड़ता है, इनटू साइन के साथ इनकी सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2 यूज करना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्मूले से आप लिखते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मिला है, आपकी लिस्ट में आपको दिया है। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 2 इनटू कॉस, जो दो एंगल है इनकी एडिशन करो और साइन के साथ इनका ही एक बार सब्सट्रैक्शन यूज करके 2 से डिवाइड करो। तो आपने ये 2 से स्टार्ट किया है, पहला रेशियो कॉस लिया है, जो एंगल दो आपको मिले हैं साइन के साथ उनकी एडिशन डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लीकेशन में साइन, और वही एंगल की सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूले से आप यहाँ उसको रिप्लेस कर रहे हैं। नीचे साइन बी प्लस साइन सी है, जब यहाँ प्लस आता है तो ये फॉर्मूला इस तरह से आता है, ट्वाइस ऑफ पहला रेशियो साइन इस सी और डी की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 इनटू दूसरा कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये जो स्ट्रक्चर है जब बीच में प्लस आता है तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर आता है। तो ये नीचे में क्या है, 2 आता है, उसके पहला रेशियो साइन आता है, एंगल की एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो ये एंगल वही है बी एंड सी है, उनकी एडिशन डिवाइडेड बाय 2 है, और कॉस बी माइनस सी सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद में ये सब मल्टीप्लीकेशन में ऊपर के क्वांटिटी और नीचे भी मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 2 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, बराबर है। अब 2 कैंसिल होने के बाद ये जो सेम एंगल वाले वैल्यूज है उनको एक बार ऑब्जर्व करो। तो यहाँ b प्लस सी अपॉन 2 इसको भी एंगल है, b प्लस सी अपॉन 2 इसको भी एंगल है, और यहाँ ये एंगल किसको अटैच किया है, कॉस, और ये एंगल किसको अटैच किया है, साइन। जब कॉस अपॉन साइन होता है सेम एंगल के साथ, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस होता है, बराबर है, कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन सेम एंगल के साथ मिला है, तो इसको रिप्लेस किया है आपने कॉट उसी एंगल के साथ, दैट इज बी प्लस सी अपॉन 2। और यहाँ अगर ये दोनों को रेशियो में यूज करते हैं तो ये साइन है और नीचे कॉस है और दोनों का भी एंगल सेम है, दैट इज बी माइनस सी अपॉन 2, बी माइनस सी अपॉन 2। तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, वो तो tan रहता है। तो आपने ये दोनों को हटाने के लिए tan यूज किया है, ये दोनों को हटाने के लिए रेशियो में हटाने के लिए आपने कॉट यूज किया है। तो कॉट आया है बी प्लस सी अपॉन 2 के साथ और tan आया है बी माइनस सी अपॉन 2 के साथ। अब इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है ये आपको थोड़ा सा
केयरफुल लेना है, क्योंकि कई एग्जाम्पल में ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन क्या होगी, हमेशा दैट इज इक्वल टू 180 रहती है। अब ये 180 को ही आप क्या लिख सकते हैं, 180 को आप कह सकते हैं कि वो पाई है। अब इसमें से कोई भी दो एंगल अगर लेफ्ट में, जैसे मैं यहाँ बी प्लस सी है, ये तो राइट में आपको क्या स्ट्रक्चर आता है, पाई माइनस ए आता है। तो जो दो एंगल आपको लेफ्ट में रखना है, तीसरे को राइट में ट्रांसफर करके पाई से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कई सारे रिजल्ट, मैं अगर ए और सी को लेफ्ट में रखता हूँ, ए और सी को लेफ्ट में रखता हूँ, तो राइट में क्या आने वाला है, बी आएगा। मैं अगर यहाँ बी दैट इज ए और बी को लेफ्ट में रखता हूँ, ए और बी को लेफ्ट में रखता हूँ प्लस में, तो राइट में क्या मेंटेन होगा, पाई माइनस सी मेंटेन होगा। तो ये तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आपको अगर मिलता है, तो उसके राइट साइड में क्या उसको रिप्लेस करने के लिए मिलता है, ये आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ जो यूज हुआ है वो इसका हाफ वाला स्ट्रक्चर है। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ए को 2 से, बी को भी 2 से और सी को भी 2 से, तो राइट में मुझे पाई को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। तो a बाय 2 प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 अपॉन इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब इसमें आप अगर ये दोनों को लेफ्ट में रखना चाहते, किसको, बी और सी को लेफ्ट में रखना चाहते, दोनों का भी सेम डिनोमिनेटर, इसीलिए एक ही बार यूज कर सकते हैं। और आपको पहला राइट में हमेशा पाई बाय 2 है, और राइट में जाने वाली क्वांटिटी कौन सी है, ए बाय 2। उसी तरह से अगर मैं बी और सी अपॉन 2 की जगह पे ए और बी को लेफ्ट में रखता हूं, तो उनका भी डिनोमिनेटर सेम है 2, तो राइट में क्या आने वाला है, पाई बाय 2। और या फिर इस क्वांटिटी को रिप्लेस करने के लिए कौन आता है, इस क्वांटिटी को रिप्लेस करने के लिए पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। इसी तरह से आप अगर आगे ए और सी को यूज करते हैं, ए और सी को अगर आप ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो ए और सी सेम डिनोमिनेटर 2 है, तो राइट में स्ट्रक्चर क्या आता है, पाई बाय 2 माइनस बी बाय 2। तो ये स्ट्रक्चर एक तो डायरेक्ट एबीसी में होगा, या फिर ए बाय 2 बी बाय 2 सी बाय 2 में होगा। तो इस एग्जाम्पल की तरफ अगर देखते हैं, तो यह स्ट्रक्चर मिला है आपको बी प्लस सी अपॉन 2 का। कहाँ है बी प्लस सी, बी प्लस सी अपॉन 2। और बी प्लस सी अपॉन 2 को रिप्लेस करने के लिए क्या आता है, पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2, क्योंकि ये तीनों की एडिशन पाई होती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हर एक का स्ट्रक्चर नीचे 2 देने का होगा। तो बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2। तो बी प्लस सी अपॉन 2 को रिप्लेस करने के लिए मैंने पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2 यूज किया है, क्वाड को क्वाड ही मेंटेन किया है। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको क्वाड को अटैच किया है, आपने किया है, तो ये तो अलग एंगल का स्ट्रक्चर है, जिसमें पाई बाय 2 के साथ में कौन सा नंबर है, 1 है तो ऑड है तो क्या करना पड़ता है, कॉट का कन्वर्शन टैन में करना पड़ता है। साइन है तो कॉस लिखना पड़ता है, कॉस है तो साइन लिखना पड़ता है, टैन है तो कॉट आता है, या फिर कॉट है तो टैन आता है, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक। तो इस तरह से 3 पेयर इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन को कॉस में लेके आते हैं आप, कॉस को साइन में। टैन अगर आपको दिया है और पाई बाय 2 के साथ में नंबर 1 है, तो ये कॉट में लिखना पड़ता है, या फिर कॉट है तो आपको लिखना पड़ेगा उसके जगह पे टैन। और कौन से एंगल के साथ, ये जो सेकंड वाला एंगल है उसके साथ वो आ जाता है। तो पाई बाय 2 माइनस सामने जो एंगल है वो टैन को आ जाता है। तो कॉट आपने टैन से क्यों रिप्लेस किया है, क्योंकि पाई बाय 2 के साथ में नंबर 1 है तो ऑड है तो कॉट का कन्वर्शन टैन में आता है, तो ये टैन आता है ए बाय 2 के साथ। और आपके पास सामने था टैन बी माइनस सी अपॉन 2। अब इस टैन ए बाय 2 को अगर लेफ्ट में आते हैं, लेके आते हैं, तो ये 1 अपॉन टैन ए बाय 2 आता है। तो यह मल्टीप्लीकेशन में है, तो यह लेफ्ट में लाने के बाद उसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। अब ये 1 अपॉन टैन क्या होता है, 1 बाय टैन, ये किसकी वैल्यू होती है, वो तो कॉट की वैल्यू होती है। तो अगर साइड चेंज करके लिखते हैं, तो इसको अगर मैं लेफ्ट में लेता हूं, टैन बी माइनस सी अपॉन 2, ये बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, और यह जो नंबर मिला है 1 बाय टैन क्या होता है, कॉट होता है। तो टैन का कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का रेसिप्रोकल है। तो ये आपको 1 अपॉन टैन को रिप्लेस करना है, तो कॉट विथ सेम एंगल दैट इज ए बाय 2। और यहाँ अगर आप देखते हैं तो आपके पास वो रिजल्ट अवेलेबल है, टैन बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाय 2। तो ये आप कह सकते हैं कि नेपियर्स एनालॉजी नंबर 1 है, जिसमें बी एंड सी का कॉम्बिनेशन आपने लेफ्ट में यूज किया है, तो बाकी राइट में उस तरह से आपको चेंज करने के लिए
वर्क होगा। अगर मैं इस नेपियर्स एनालॉजी नंबर 2 को अगर प्रूव या फिर उसका स्ट्रक्चर चेक करना चाहता हूँ तो क्या होगा, तो ये अगर मान लो 1 है तो ये सेकंड वाली नेपियर्स एनालॉजी क्या होगी, tan ही होगा लेफ्ट में, और ये आप बी और सी के जगह पे मैं अगर ए एंड बी के लिए यूज करता हूँ तो ए माइनस बी का स्ट्रक्चर है डिवाइडेड बाय 2 है, बी माइनस सी अपॉन 2 की जगह पे ए माइनस बी अपॉन 2। तो जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ यूज किया है वही स्ट्रक्चर राइट में आता है और साइन में चेंज करके नीचे लिखना पड़ता है। तो स्मॉल ए आएगा माइनस बी और यही स्ट्रक्चर प्लस में नीचे आता है ये ब्रैकेट, और उसके साथ में जैसे यहाँ tan है तो राइट में क्या आता है, कॉट आता है, तो ये कॉट आता है कौन से एंगल के साथ, जो एंगल tan के साथ नहीं आया है। तो tan के साथ कौन सा एंगल नहीं आया है, ये आया है, बी आया है, तो यह सी बाकी है, तो उसका हाफ स्ट्रक्चर क्वाड को आ जाता है। तो ये नेपियर्स एनालॉजी नंबर 2 है। और थर्ड वाली नेपियर्स एनालॉजी क्या होगी, tan बी माइनस सी हुआ है, ये माइनस बी हुआ है, आप लास्ट में आप कह सकते हैं कि ये माइनस सी स्ट्रक्चर बाकी या फिर सी माइनस ए, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, अपॉन 2 है। तो राइट में क्या आता है, उनका ही स्मॉल वाला स्ट्रक्चर दैट इज ए माइनस सी, और उसका साइन चेंज करके नीचे दैट इज अपोजिट ए प्लस सी इंटू कॉट, ए है सी है, कौन सा एंगल नहीं है tan को, बी नहीं है, तो इस कॉट को कौन सा एंगल आएगा, दैट इज बी बाय 2। तो इस तरह से 3 आपके पास ये नेपियर्स एनालॉजी तैयार हुए हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो यहाँ ये कंसेप्ट आपको याद में रखना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल के एंगल की एडिशन की वैल्यू पाई रहती है, उसको हाफ करेंगे तो पाई बाय 2, और 2 लेफ्ट में रखेंगे तो तीसरा पाई बाय 2 माइनस तीसरा आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हर एग्जाम्पल में आगे यूज करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल की तरफ जाना चाहते हैं, ये सभी के ऊपर एग्जाम्पल्स, 1-2 एग्जाम्पल यूज करेंगे। जो एरिया निकालने के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया, प्रूव किया है, वो ऑलरेडी आपने 8th स्टैंडर्ड में यूज किया है। उस टाइम आपने वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था, किसी ने पूछा नहीं था कि ये कैसा आता है, क्यों आता है, लेकिन इसका प्रूफ आप 12th स्टैंडर्ड में तैयार कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, with usual notation prove that sin a minus b divided by sin a plus b is equal to a square minus b square divided by c square. Now this is to be proved इन ट्रायंगल एबीसी, ये सब ट्रायंगल एबीसी में आपको प्रूव करना पड़ेगा, इसमें ये एंगल के लिए है और स्मॉल एबीसी साइड्स के लेंथ के लिए है, तो ये ट्रायंगल में होल्ड होगा, बाकी कंसेप्ट पे नहीं है। तो आपको साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का स्ट्रक्चर प्रूव करना है। तो आप फिर से एक बार इसको प्रूव करने के लिए आपके साइन रूल के लिए, साइन रूल से आप स्मॉल एबीसी की वैल्यू तैयार करना चाहते हैं। सो बाय साइन रूल वी हैव, साइन रूल से आप डायरेक्ट जैसे पहले आपने यूज किया था कि ये की वैल्यू क्या रहती है, के टाइम्स ऑफ साइन ऑफ कैपिटल ए एंगल, स्मॉल बी की वैल्यू क्या होगी, बी इंटू के, सॉरी बी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बी, और स्मॉल सी की वैल्यू होती है दैट इज के टाइम्स ऑफ साइन ऑफ सी। अब आप इस राइट से वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये राइट से आप स्टार्ट करो, क्योंकि आपको मालूम है स्मॉल एबीसी की वैल्यू। तो ये राइट का स्ट्रक्चर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है।
अब ये की वैल्यू तो साइन रूल से मालूम है, वो वैल्यू है के इंटू साइन ए। अब ये का स्क्वायर करना है, इसका मतलब के का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा, बराबर है। तो ये के का स्क्वायर और यह साइन का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करना है, इसका मतलब के का स्क्वायर एंड साइन का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर, मीन्स के का स्क्वायर करना पड़ेगा और साइन का भी स्क्वायर सी एंगल के साथ यूज करो। अब इसको आगे अगर ट्रांसफर करते हैं तो फिर से वही वो स्ट्रक्चर होगा कि आप इनको ऊपर से के स्क्वायर कॉमन निकालो और नीचे की के स्क्वायर के साथ वो कैंसिल हुआ है, ऐसा आप डायरेक्ट अज्यूम करके रिमेनिंग वैल्यूज को लिखना चाहते हैं। तो ये होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर सी। अब न्यूमरेटर में जो स्ट्रक्चर मिला है आपको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है। तो उसके दो ब्रैकेट बनाते हैं आप, ए प्लस बी वाला और इंटू ए माइनस बी वाला। तो आपका जो ये है वो साइन है और बी है जो साइन बी है, तो इनके दो ब्रैकेट आपको लिखना है। तो पहला ब्रैकेट आता है उनके प्लस का, तो एक ब्रैकेट में आता है साइन ए प्लस साइन बी, मल्टीप्लीकेशन में दूसरे ब्रैकेट में आता है साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर सी। अब साइन ए प्लस साइन बी एंड साइन ए माइनस साइन बी, इनको आप फॉर्मूले की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी का अगर यूज करते हैं, जैसे साइन सी माइनस साइन डी का आपने अभी यूज किया है, तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का अगर यूज करते हैं तो फॉर्मूला स्टार्ट होता है 2 से, और वो स्ट्रक्चर होगा साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये ब्रैकेट को आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं 2, दैट इज साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। और दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है, अब यह सब मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए इसकी वैल्यू आप लिखना चाहते हैं तो ये स्टार्ट होगा 2 से, और ये साइन सी माइनस साइन डी वाला है, फैक्टराइजिंग फॉर्मूला नंबर 2 वाला अगर यूज करते हैं तो ये 2 आता है, इसके साथ में पहले कॉस आएगा, और कॉस को क्या एंगल आता है, कॉस को ये दोनों के एंगल की एडिशन डिवाइडेड बाय 2, और दूसरे रेशियो की वैल्यू होती है साइन, और साइन को क्या एंगल आएगा, ये दोनों एंगल की सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज ए माइनस बी अपॉन 2, सेम डिनोमिनेटर, दैट इज साइन स्क्वायर सी। अब यह एक वर्क करना चाहते हैं, ये वर्क है कि 2 आप एज इट इज मेंटेन करना चाहते हैं, साइन एज इट इज मेंटेन करना चाहते हैं, और ए प्लस बी अपॉन 2 के पास, अब ये सब मल्टीप्लीकेशन में उसी टाइप का जो एंगल है कॉस को, उसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लेना चाहते हैं। तो मुझे 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 के पास कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 लेना चाहता हूं मैं। तो ये कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, डिनोमिनेटर में 2 है इसके भी, तो ये तीनों को मिला के एक क्वांटिटी है, ऐसा मैं इसको लिखना चाहता हूं। और सिमिलरली अब बाकी का क्या है आपके पास, ये 2 बाकी है, यहां से ये साइन ए माइनस बी अपॉन 2 भी बाकी, मैं टर्म्स को सिर्फ सेपरेट कर रहा हूं, और यहां से कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 बाकी, तो कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। सो व्हाट वी हैव, और डिनोमिनेटर में एक वर्क है, वो वर्क इस तरह से है कि साइन, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर आप ब्रैकेट को देना चाहते हैं, इस ब्रैकेट को स्क्वायर अगर अटैच करते हैं तो उसकी सेम वैल्यू रहती है। और आप ये ट्रायंगल में वर्क है, तो आपको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर पाई है तो इस सी की वैल्यू क्या होगी, सी इज इक्वल टू होगा पाई माइनस ए प्लस बी।
अगर मैं इस सी को ही लेफ्ट में रखता हूं तो ए प्लस बी को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो पाई माइनस ए बी होगा। तो इस तरह से इसको आप लिखना चाहते हैं पाई माइनस ए प्लस बी, ताकि आगे जाके कैंसलेशन कर सके आप यहां अगर देखते हैं पहला जो बॉक्स है 2 इंटू साइन ऑफ सब एंगल इंटू कॉस ऑफ सेम एंगल, तो ये तो स्ट्रक्चर इस तरह से कि 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, बराबर है क्या? 2 है, साइन है, एक एंगल है उसका हाफ आपने दिया है, इंटू कॉस है और उसी एंगल का हाफ आप यूज कर रहे हैं कॉस को। तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है? ये स्ट्रक्चर होता है साइन ऑफ थीटा का। ये सब निकल के जाता है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये सब को हटाने के लिए सिर्फ साइन थीटा आता है। तो थीटा कहाँ होगा? ये ऊपर 2 के ऊपर जो एंगल के ऊपर साइन के सामने जो एंगल है 2 को छोड़ के वो एंगल आप साइन को देना चाहते हैं। तो ये 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये सब को हटाने के लिए आने वाला कौन है? तो ये आपको मिलता है सिर्फ साइन ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि जो थीटा है वो ए प्लस बी और मल्टीप्लीकेशन है, और ये यहाँ एंगल कौन सा है? साइन को ए माइनस बी अपॉन 2 है और कॉस को भी ए माइनस बी अपॉन 2 है। तो ये सिर्फ ए प्लस बी की जगह पे ए माइनस बी, तो 2 है, साइन है थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 है, तो ये भी स्ट्रक्चर साइन ऑफ थीटा का ही है। लेकिन यहाँ थीटा कौन है? थीटा दैट इज साइन को आने वाला जो एंगल है इसका डबल करते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये ए माइनस बी का एंगल का स्ट्रक्चर इस साइन को अटैच हो जाता है। और नीचे आपने इस साइन पाई माइनस ए समथिंग है, तो साइन पाई माइनस समथिंग क्या होगा? तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी होता है, और जो ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये ब्रैकेट का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर साइन को अगर यूज करते हैं आप, फिर से वापस साइन को अगर देते हैं तो आपको यहाँ साइन ए प्लस बी एक ऊपर भी है और साइन स्क्वायर ए प्लस बी, इसका मतलब साइन ए प्लस बी नीचे 2 है, तो एक साइन ए प्लस बी ऊपर के साइन ए प्लस बी के साथ अगर कैंसिल करते हैं तो आपको ऊपर मिला है साइन ए माइनस बी और नीचे 2 में से एक तो इसके साथ कैंसिल हुआ है क्योंकि इनके एंगल सेम है, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, तो ये कैंसिल होने के बाद और एक नीचे आपको मिलेगा, और ये जो मिला है यही आपकी लेफ्ट साइड है। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। सो आरएचएस से आपने स्टार्ट किया था और आरएचएस को स्टार्ट करने के लिए आपने साइन रूल का यूज किया है। साइन रूल में आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहाँ यूज की है, वैल्यू यूज करने के बाद के स्क्वायर को कैंसिल किया है, के स्क्वायर कैंसिल करने के बाद ये स्ट्रक्चर आता है, ये स्ट्रक्चर इसको मैच करता है, तो इसके 2 ब्रैकेट बना सकते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब इसमें फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नंबर फर्स्ट इसको यूज करना है, 2 साइन एडिशन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2, इसके लिए स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है साइन सी माइनस साइन डी वाला। तो वो स्टार्ट होता है 2 से, पहला कॉस आता है, एडिशन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2 एंड इनटू साइन सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2, नीचे एज इट इज। अब इसमें आपने ए प्लस बी अपॉन 2 मेंटेन करने वाले जो एंगल्स को मेंटेन करने वाले जो रेशियो है उनको एक साथ यूज किया है, तो 2 है साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और इस क्वांटिटी को आपने यहाँ यूज किया है। मल्टीप्लीकेशन में है तो आप कभी भी उनकी प्लेस चेंज कर सकते हैं। बाद में बाकी क्या है, 2 है, यहाँ से साइन ए माइनस बी अपॉन 2 एज इट इज, और ये कॉस को यहाँ पे यूज करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर से ट्वाइस ऑफ साइन समथिंग अपॉन 2 इंटू कॉस सेम थिंग अपॉन 2, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आता है साइन ऑफ सेम थिंग। तो ये पहले ब्रैकेट को रिप्लेस करने के लिए साइन ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट को रिप्लेस करने के लिए साइन ए माइनस बी, और ये नीचे में आपने जो यूज किया है सी को रिप्लेस करने के लिए, सी है तो क्या है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो पाई रहता है, पाई मीन्स 180, तो अगर सी को लेफ्ट में रखते हैं तो ए प्लस बी राइट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो पाई से सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये सी को हटाने के लिए आपने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है। और ये स्ट्रक्चर से
आप साइन पाई माइनस समथिंग क्या होता है, तो साइन ऑफ सेम थिंग होता है। तो पाई है तो आप साइन को साइन ही यूज करते हैं सेकंड एंगल के साथ, और जो स्क्वायर था वो साइन को फिर से वापस आप देते हैं। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी ऊपर नीचे का कैंसिल करते हैं, तो आपको इस लेफ्ट साइड की तरफ जाने का रास्ता मिलता है। तो ये रियलिटीज की तरफ आपने प्रूव किया है। तो इस तरह से पहला रिजल्ट ये ट्रायंगल के एंगल्स के साथ रिलेशन यूज करके आपने प्रूव किया है। अब एक और एग्जांपल, एग्जाम्पल है इन ट्रायंगल एबीसी इफ angle C is equal to 90 degree, then prove that प्रूव करना है कि साइन A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यह उसी पहले एग्जांपल के जैसे ही स्ट्रक्चर आपको यहां दिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर मिला है आपको, इस स्ट्रक्चर से एंगल सी के बारे में आपके पास डाटा है। तो यहां आपको फिर से साइन रूल यूज करना है। अगर मैं एग्जांपल यहां से आंसर स्टार्ट करता हूं, तो बाय साइन रूल A is equal to K times of A, B is equal to K times of B, small c is equal to K times of sine of C, then we are using this concept of if angle C is 90, then what will happen? Since angle C is equal to 90 degree, that is pi by 2, तो ये जो ट्रायंगल आपको मिलता है, ये ट्रायंगल यह 90 का स्ट्रक्चर है और यह होगा A एंड B। तो ये C होगा, यह B होगा और ये होगा। तो तीनों में एक रिलेशन होल्ड होता है, दैट इज स्मॉल c इज इक्वल टू, हमेशा ये मेंटेन होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये C के सामने वाली साइड ही हाइपोटेनस होगी, तो उसका स्क्वायर ये बेस और हाइट के स्क्वायर के साथ होता है। तो इस तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हैं। अब ये रिजल्ट आगे यूज करना है, तो आपको साइन रूल और इस रिजल्ट को आगे लेके जाना है इस राइट साइड से स्टार्ट करके। तो इफ आई कंसिडर द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड का है वैल्यू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये की वैल्यू तो K साइन है और उसका स्क्वायर है, तो फिर से वही स्ट्रक्चर आता है, A स्क्वायर दैट इज K स्क्वायर साइन स्क्वायर A माइनस है, और B का स्क्वायर है तो B का स्क्वायर करने के लिए K का स्क्वायर करना पड़ेगा और साइन स्क्वायर B यूज करना पड़ेगा, और नीचे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो आपने पहले से ही कहा है, वो तो C का स्क्वायर है, और C का स्क्वायर इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऊपर से K स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं आप, तो ब्रैकेट के अंदर मिलता है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B डिवाइडेड बाय C का स्क्वायर दैट इज K स्क्वायर साइन स्क्वायर C। तो ये K स्क्वायर अगर कैंसिल करते हैं, तो आपको इस ब्रैकेट के अंदर अगर देखना है, तो ये वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो ये स्ट्रक्चर आता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जैसा। तो इसके दो ब्रैकेट आपको बनाने पड़ते हैं। तो ये को आता है साइन A प्लस साइन B, और दूसरे ब्रैकेट में आता है साइन A माइनस साइन B, नीचे साइन स्क्वायर C एज इट इज। फिर से एक बार वही कि आप अगर इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नंबर 1 के तरफ इसको लेके जाना है और इसको सेकंड के तरफ लेके जाना है, तो ये आगे के स्टेप में स्टार्ट होता है 2 से।
2 से स्टार्ट करेंगे तो ये साइन पहला रेशियो, एडिशन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2, तो ए प्लस बी अपॉन 2 का स्ट्रक्चर, इनटू कॉस आता है ए माइनस बी अपॉन 2 का स्ट्रक्चर। फिर इसको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 इंटू कॉस, एडिशन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2, साइन के साथ सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2, और नीचे आप अगर लिखना चाहते हैं तो ये साइन स्क्वायर है, अभी जो आपने यूज किया था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू तो पाई होता है, तो सी की वैल्यू क्या होती है वो तो कह सकते हैं पाई माइनस, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो ये साइन सी कितना होगा, तो साइन की वैल्यू तो सी एंगल के साथ अगर लिखनी है तो सी का तो वैल्यू 90 है, तो साइन यहाँ कह सकते हैं कि साइन 90 का स्क्वायर। फिर से एक बार उसी स्ट्रक्चर को बनाना है जो आपने पहले यूज किया था कि ए प्लस बी अपॉन 2 वाले एंगल को एक साथ लेना है, तो यहाँ ए प्लस बी अपॉन 2 वाला एंगल साइन के साथ है, या ए प्लस बी अपॉन 2 एंगल कॉस के साथ, तो कॉस ए प्लस बी को आप पहले लेना चाहते हैं इन 2, अब इसका 2 है बाकी है, और यह साइन ए माइनस बी अपॉन 2 के साथ है, और इसका कॉस है ए माइनस बी अपॉन 2 के साथ, और नीचे आप कह सकते हैं डायरेक्टली ये साइन 90 होता है 1, साइन 90 होता है, साइन 90 होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मेंटेन होगा, लेकिन पहले 3 वैल्यूज इस फॉर्मूले से कौन सा 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, अब यह थीटा एडिशन के फॉर्म में है और यह सब्सट्रैक्शन के फॉर्मूले ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये थीटा कोई भी हो सकता है, तो ये स्ट्रक्चर मैच होता है इस उस फॉर्मूले को, 2 है साइन है, सम एंगल है उसके नीचे 2 है, उसके बाद में कॉस है और वही एंगल है उसके नीचे 2 है, तो इस वैल्यू की लेफ्ट साइड होती है साइन थीटा। तो इस स्ट्रक्चर को आप अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये सिंपली कह सकते हैं ये साइन ऑफ ए प्लस बी है, बराबर है। तो ये जो ए प्लस ऊपर 2 को छोड़ के जो ऊपर का एंगल होता है वो साइन को देना पड़ता है, 2 को छोड़ के ऊपर का जो एंगल होता है वो साइन को लेफ्ट में देना पड़ता है, उतना ही आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। और ये राइट में क्या है, इस तीनों क्वांटिटी को रिप्लेस करने के लिए साइन तो आएगा ही, लेकिन उसका 2 को छोड़ के ऊपर का एंगल कौन सा है, दोनों कॉस और साइन का ए माइनस बी। अब नीचे 1 का स्क्वायर है, लिखने की जरूरत नहीं, अब आपको इस ए प्लस बी को रिप्लेस करना चाहते हैं और इस फिर से इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, अब ए प्लस बी को लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो सी को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा राइट साइड में, और जब इस एंगल को साइन के साथ अटैच करते हैं, साइन ए प्लस बी है तो क्या लिख सकते हैं साइन पाई माइनस सी, बराबर है। और साइन को जब पाई माइनस सी एंगल होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जस्ट एज ए साइन, क्योंकि ये पाई 180 से 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वार्टर में पाई है, तो क्या करना पड़ता है साइन को साइन ही मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि वो एन जो होता है वो इवन नंबर होता है, तो साइन को साइन ही मेंटेन करना पड़ता है सी एंगल के साथ, और साइन तो सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट आप साइन से लिख सकते हैं। तो आपको हटाना है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी को डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, साइन ए प्लस बी को डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन ऑफ कैपिटल सी, और साथ में कौन है साइन ए माइनस बी, और अभी आपको साइन सी की वैल्यू क्या है, सी तो 90 है, सो साइन के सी को आपने अटैच किया है 90 और साइन ए माइनस बी, तो साइन 90 तो 1 होता है, तो 1 इंटू साइन ए माइनस बी, तो आपका टारगेट था कि साइन ए माइनस बी प्रूव करना है, तो ये साइन ए माइनस बी आपको लेफ्ट में जो चाहिए था वो मिल जाएगा। तो आपने राइट से स्टार्ट किया था और आपको लेफ्ट उस रास्ते से आगे जाके मिल गया है। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल 2 है, और एक लास्ट एग्जाम्पल जो
एरिया के स्ट्रक्चर में आपको दिया है उसको यूज करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, प्रूव दैट, प्रूव ये करना है कि ये साइन a/2 इनटू साइन b/2 इनटू साइन c/2, ये प्रूव करना है आपको। इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इट्स बॉक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू बी इंटू सी इंटू एस। तो ये तीनों जब मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, साइन a/2, साइन b/2, साइन c/2, तो इस तरह से उसकी वैल्यू मेंटेन होती है। अब ये लेफ्ट का स्ट्रक्चर अगर एक बार आप चेक करते हैं तो ये सब हाफ एंगल वाले साइन के रेशियो के साथ अटैच किए वाले। तो आप अगर हाफ एंगल के फॉर्मूले को यूज करेंगे इनको रिप्लेस करने के लिए, तो हाफ एंगल के फॉर्मूले आपको यूज करना है। तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे प्रूव करने के लिए। तो लेफ्ट में साइन a/2 इनटू साइन b/2 इनटू साइन c/2। अब साइन को अगर a/2 है तो साइन a/2 का हाफ एंगल का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको मालूम है। ये जब होता है तो ये कभी भी नहीं आता है राइट में, तो यस के साथ में सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है बी को, और यस से सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है सी को, और इनका ही प्रोडक्ट नीचे आता है तो बी से आता है। उसके साथ में साइन b/2 भी है, तो साइन b/2 में बी नहीं आएगा अंदर, बी नहीं आता है तो क्या आता है यस माइनस ए यस माइनस सी डिवाइडेड बाय सेम वही टू नंबर विच वी हैव सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम यस इन these two brackets। एंड थर्ड वाला साइन c/2 है, तो साइन c/2 है तो c नहीं आता है, तो c को छोड़ के ए और बी यस से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और नीचे ए एंड बी है वही दो नंबर। अब ये सभी प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक ही मैं रूट देता हूं ऊपर के लिए और नीचे के लिए तो क्या आता है देखो, न्यूमरेटर का एक ही रूट के अंदर आप लिखना चाहते तो पहले में था यस माइनस बी यस माइनस, तो रूट में पहली क्वांटिटी रूट में पहले तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग रूट यूज करो, और न्यूमरेटर सभी मल्टीप्लीकेशन में है तो ये तीनों का कॉमन आप रूट दे सकते हैं। तो सेकंड ब्रैकेट में था यस माइनस ए यस माइनस सी, थर्ड में है यस माइनस ए यस माइनस सी, और यहां नीचे आपके पास अवेलेबल है रूट के अंदर, अगर इनको भी कॉमन रूट देते हैं तो ये है बी है बीसी है एसी है और ए बी है। अब इसको आप अगर बैलेंस करना चाहते तो यह क्या मिला है आपको इसमें, अगर इसको थोड़ा सा आप आगे के स्ट्रक्चर में तैयार करने के लिए कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है आपको मिला है यस माइनस ए यस माइनस बी। अब यस माइनस ए कितने टाइम्स है, यस माइनस ए 2 टाइम्स है, मल्टीप्लीकेशन में तो उसके ब्रैकेट का स्क्वायर आता है। यस माइनस बी यहाँ भी है, यस माइनस बी यहाँ भी है तो उसके ब्रैकेट का स्क्वायर आता है। यस माइनस सी 2 टाइम्स है तो यस माइनस सी नाम के ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। और नीचे क्या है, नीचे भी वही स्ट्रक्चर है, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, ये ए का स्क्वायर यहाँ मिलता है, यहाँ भी बी है मल्टीप्लीकेशन में, ये भी बी है तो ये बी का स्क्वायर आता है, और इस सी और सी के मल्टीप्लीकेशन से सी का स्क्वायर मेंटेन होगा। अब यहाँ स्ट्रक्चर ऐसा मिला है कि हर एक क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में है, रूट के अंदर है और हर एक का स्क्वायर है, तो स्क्वायर एंड रूट ये एंटी प्रोसेस है तो ये कैंसिल होते हैं, तो इसकी वैल्यूज रूट निकल जाता है और स्क्वायर भी निकल जाता है, तो ये मिलता है आपको यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। और नीचे भी वही स्ट्रक्चर है, मल्टीप्लीकेशन में है, हर एक क्वांटिटी का स्क्वायर है और उनका कॉमन रूट है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू मिलती है
ए इंटू बी इंटू सी। अब आपको राइट की तरफ अगर जाना है तो यस की जरूरत है नीचे, और वैसे ही ट्रायंगल के एरिया में यस होता है, तो आप इसको आगे के स्टेप में यस बैलेंस करके लिखना चाहते हैं, तो यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी डिवाइडेड बाय, आपने ये ऊपर यस लाया है तो नीचे भी आपको बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा। तो पहला जो एबीसी था, इसके साथ में यस को बैलेंस करने के लिए और एक यस देना पड़ेगा। अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर आप लिखते हैं ये चारों को, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अगर वो रूट हटाते हैं तो लेफ्ट में उसका स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, जो आप रूट के अंदर लिखते हैं तो ये बिना रूट में आए हैं, तो बिना रूट में आता है, इसका मतलब इसको रूट आपने हटा लिया है तो उसका स्क्वायर किया होगा दोनों साइड का। तो इसीलिए आप ये न्यूमरेटर को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, लेकिन ये बिना रूट में है। बिना रूट में क्यों आया होगा, क्योंकि आपने दोनों साइड का स्क्वायर लिया होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का भी आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, तब इसके साथ वो डायरेक्ट मैच होगा, क्योंकि ये तो रूट के अंदर होता है तब ये बिना स्क्वायर होता है। तो जब ये बिना रूट वाला है तो इसको कंपल्सरी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तब वो बैलेंस होता है। और नीचे है एबीसी इंटू एस, और यही आपका राइट साइड है। तो आपने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज की है, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू को रिप्लेस किया है उसके हाफ एंगल फॉर्मूले से इन टर्म्स ऑफ एस एंड एबीसी, और ये सिंपल वर्क करके आप यहाँ आए हैं, बैलेंस यस आपने किया है, और यहाँ आते हैं तो ये स्ट्रक्चर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का है, लेकिन बिना रूट वाला है तो आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तब ये इक्वल मेंटेन होता है, और नीचे एबीसी यस। तो इस तरह से राइट साइड आपने तैयार की है। तो ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, जिसका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ये कंसेप्ट आपको बाकी था लॉकडाउन के पहले, बाकी का पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंप्लीट हुआ था, लेकिन ट्रायंगल रिलेटेड कंसेप्ट आपका बाकी था, जो इस पीरियड से आपका कंप्लीट हुआ है। तो कुछ एग्जांपल्स आगे के पीरियड में आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ओके, वी स्टॉप।